Yes, friends, so welcome you all. Now we are starting with a new act. The name of the act is the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Friends, you can see the name of the act. It's a very lengthy act, and this act is shortly abbreviated as SARFAESI Act 2002. And friends, this being a video lecture, just for the purpose of video lecture, friends, I'll be using a short form, that is SA02. Yani you need to understand SARFAESI Act 2002 just for the purpose of this video lecture. This is not at all a valid abbreviation. Second important thing is we are going to make the use of another act as a base. Friends, as such you see, then you can directly understand this SARFAESI Act. But friends, you know that when we are learning, we always try to conglomerate various acts so that we have a broader perspective of what we are going to understand, and we don't try to understand just for the sake of examination, but we try to understand in a holistic perspective. So we are going to take the reference of another act, that is the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993, which is abbreviated as the Debt Recovery Act 1993. So, in short, we are going to make the use of two acts. One is the SARFAESI Act and another is the Debt Recovery Act. Now, friends, how we are going to understand this particular act? Then I am going to bifurcate this act into four different parts. If we see, then part A will be basic concepts. Part B will be all the concepts associated with asset reconstruction company, which will be shortly abbreviated as ARC. Part C will be with respect to enforcement of security interest, and part D will be the legal process. So this is how we are going to bifurcate this whole act into four different parts, so that when you try to understand this, it will be very logical for you to understand the whole act. And today's session will be mainly focusing on this first part, that is basic
concept. And believe me friends, if you are crystal clear with this very first part, then this whole act will be very easy for you. Normally friends, we try to know the trend. Then many people think that this act is very tough. I too agree. But this act is not that difficult to understand. So in order to make your understanding very lucid, you need to first very much clearly understand this basic concepts. And once you are clear with basic concepts, right, then this act will become very lucid, what clear for you to understand. So thorough concentration on first the basic concepts. So now friends, we are starting with part A of the act, basic conceptual अंडरस्टैंडिंग. हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट आई डिस्कस विथ यू द हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ ब्रिंगिंग दिस एक्ट. सेकेंड, देन आई डिस्कस विथ यू the diagrammatic procedure of this asset reconstruction. The third, I will discuss with you various important definitions. These three things will be very important for us to understand. Now friends, if we try to go to the history of this particular act, then if we start with the history, then friends, till 1992 जब भी कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन देते हैं, तो फॉर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट इज एन असेट एंड फॉर अस इट इज अ लायबिलिटी. यानी कि जब फ्रेंड्स हम लोन लेते हैं तो हमारे लिए इट्स अ लायबिलिटी, अंडरस्टूड, बट फॉर बैंक इट्स एन असेट. दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू कैरी ऑन. एंड काफी सारे लोग इसलिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सरफाइशी एक्ट को पढ़ते वक्त, बिकॉज वो अक्सर एक सिटीजन, एक नॉन बैंकर, एक बोरोवर के पर्सपेक्टिव से पूरे एक्ट को समझते हैं, जबकि हालांकि हमें ये एक्ट को एक लेंडर के पर्सपेक्टिव से समझना होता है, हमें इस एक्ट को बैंक के पर्सपेक्टिव से समझना होता है. सो फॉर बैंक इट्स अ फाइनेंशियल असेट. अब जब तक बैंक को रेगुलरली इंस्टॉलमेंट्स मिलते रहते, रेगुलरली डेट सर्विसिंग रिपेमेंट मिलता रहता है, तो वो असेट कहलाता है परफॉर्मिंग असेट. एंड जब बैंक को वो पैसे मिलने में थोड़ी दिक्कतें आती है या डेट रिपेमेंट नहीं आ रहा, तो फिर वी क्लासिफाई दैट असेट एज non-performing asset. Now when the asset is a performing asset और बैंक उस performing asset की अर्ली रिकवरी करना चाहता हूं, तो 1992 तक बैंक्स किसके पास जाते थे? तो बैंक्स वे टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर बैंक्स, और यू कैन से banks were taking the support of
बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों की बैंक यानी कि आरबीआई। एंड अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते थे तो बैंक्स वेर गोइंग टू कोर्ट्स। तो बैंक किसके पास जाते थे? कोर्ट के पास जाते थे और they were taking the support. This was the civil courts which we normally see. This was the scenario till 1992. Then the number of cases of debt recovery increased. The number of cases of NPAs also increased. And then there was a need to have a separate establishment, to have a separate legal establishment where banks can go and can recover the debt. In order to ensure that, government came up with tribunals, and the tribunals which were for recovery of debts, then that tribunal were debt recovery tribunals. And in order to provide a legal framework for that particular tribunals, law came up, means our legislation came up with one legislature. That is the legislature which I told you earlier. That is this legislature. That is the Recovery of Debts Due. ये वाला legislature. The Debt Recovery Act came into picture. So what happened? (1993) से लेके 2001 क्या होने लगा? अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कोई भी बैंक को जिनके पास फिनेंशियल असेट्स हो, वो फिनेंशियल असेट अगर परफॉर्मिंग असेट हो और अगर हम उनकी अर्ली रिकवरी करना चाहते, फ्रेंड्स आपको ऊपर वाले के साथ कंपेयर करना है, उनकी अर्ली रिकवरी करना चाहते हैं तो अब बैंक्स कहां जाती थी? अदर बैंक्स के पास एंड उसके बाद आरबीआई के पास। एंड अगर असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट हो एंड उनकी एफिशिएंट रिकवरी करनी हो तो अब बैंक्स कहां जा सकती है? DRT। फ्रेंड्स इट इज अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। फिर वहां से आगे वो लोग कहां जा सकते हैं? डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल। एंड उसके बाद वो लोग कहां जा सकते हैं? कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। सो दिस वाज द सिनेरियो फ्रॉम 1993 to 2001. But friends, then there were various issues in the financial sector, and also some established economies like economies of US and every also started facing some liquidity issues, management of economy issues, and the banks were started becoming bankrupt. So in order to control this particular scenario, our government of India also introduced one act, that which we are studying right now, the SARFAESI, as you can see on the screen, right? You can see on the screen, the SARFAESI Act 2002 was introduced. A separate mechanism of asset reconstruction company came into picture. आप बोलो सर हमें तो ये asset reconstruction company और ये सारे टर्म्स याद नहीं है, पता भी नहीं है सर क्या है ये सब। तो हम हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री के बाद हम लॉजिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए जाएंगे। पर उसके पहले अभी 2 मिनट खाली हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो क्या होने लगा? (2002) onwards, what started happening? अब बैंक के पास कोई भी फाइनेंशियल असेट हो एंड वो फाइनेंशियल असेट अगर परफॉर्मिंग असेट हो और उस परफॉर्मिंग असेट की अर्ली रिकवरी करनी हो तो अब बैंक्स सबसे पहले जाना चाहे तो जा सकते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, या फिर वो जा सकते हैं अदर बैंक्स के पास, या फिर वो जा सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सो फ्रेंड्स, दिस asset reconstruction company is something new which came into picture. Plus friends, अगर बैंक्स के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो और बैंक्स उसकी और एफिशिएंट एंड टाइमली रिकवरी करना चाहती हो तो बैंक्स अगर चाहे तो
अब सबसे पहले जा सकते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, अगर चाहे तो। उसके बाद वो लोग अभी भी जा सकते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, उसके बाद फर्दर जा सकते हैं डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, एंड उसके बाद फर्दर वो जा सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स के पास। सो दिस इज द सिनेरियो पोस्ट 2002। सो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेयर करो इस पूरी हिस्ट्री को, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से धीरे 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 रिवॉल्यूशन आया। एंड आप एक चीज देख सकते हो, गवर्नमेंट ने हर बार बैंक्स कैसे अपने पैसों को फास्ट रिकवर कर पाए, उसके लिए नए नए एवेन्यू, नए नए रास्ते ढूंढते गए। एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के आने से हुआ क्या, बैंक्स अपने फाइनेंशियल एसेट की अर्ली रिकवरी करना चाहती हो या एफिशिएंट रिकवरी करना चाहती हो, खाली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही नहीं, परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए भी एक नया एवेन्यू बढ़ा, एंड दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो फ्रेंड्स, इसी जो हमने ये स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है, राइट, उसी को अगर मैं थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो फिर हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, कोई भी बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, राइट, वो सबसे पहले, जस्ट अ मिनट, कोई भी बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो सबसे पहले क्या करते थे वो लोग, पैसे रिकवर करने किसके पास जाते थे, कोर्ट्स के पास। फिर क्या हुआ, दो नई चीजों की स्थापना हुई। एक डीआरटी, दूसरा डीआरएटी। सो अब बैंक्स 2000, दिस वाज अप टू 1992। फिर 1993 ऑनवर्ड्स डीआरटी, डीआरटी टू डीआरएटी, डीआरएटी के बाद वो कहां जा सकते हैं, कोर्ट्स के पास। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, एक और नए मैकेनिज्म की स्थापना हुई, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो बैंक्स अब पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, फिर डीआरटी एंड फिर डीआरएटी। दिस इज हाउ फ्रेंड्स, एंड व्हेन वी वांट टू गो टू डीआरटी और डीआरएटी, we need to take the support of Debt Recovery Act 1993. When we want to go to asset reconstruction company, we have to take the help of Sarfaishi Act 2002. This is how, friends, we try to modulate the things and we try to understand the things. So this was, friends, for your basic understanding. You can pause this video and you can take down this, because this will be very helpful to you in understanding the historical background of this act. Friends, आप कहते हो कि सर अभी ये historical understanding समझाने की क्या जरूरत है, right? Then now, friends, believe me, when integrated case studies will come, when your MCQs will be based on case studies, right, it will be very much pertinent for you to understand the background of the act. So this was the very first thing which we were understanding, that is the history of the act. Now, friends,
we are moving towards another thing, that is the diagrammatic representation. द डायग्रामेटिक प्रोसीजर. अब फ्रेंड्स, ये डायग्रामेटिक पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, तो यहां पे 4 अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व है. Parties involved in process. The very first is the borrower. The second is the bank oblique financial institution. The third is the asset reconstruction company. The fourth is the investors. So ये 4 टर्म्स यहां पे इन्वॉल्व है. अब फ्रेंड्स, ये टर्म्स जो है उनके थोड़े टेक्निकल नाम है. जैसे कि बोरोवर को हम यहां पे कहते हैं obligor. या फिर आप उसे कह सकते हो ऑब्लिगेटर, इन द सेंस द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज ऑब्लाइज्ड टू पे. फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम यहां पे कहते हैं originator. Friends, this is the problem. Means this is the scenario, because when you understand the act, they will use the term obligator, originator. So you get confused, what is this happening? So you need to turn understand this. Asset reconstruction company is normal, and investors ko they call it as qualified buyers. So friends, ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो वापस से मैं आपको खाली कह देता हूं कि बोरोवर को वो लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनेटर या ऑब्लिगेटर. बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे टेल इट एज ओरिजिनेटर. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज लाइक कंपनी एआरसी, एंड इन्वेस्टर्स इज क्वालिफाइड बायर्स. अब ऐसे ही इसे इन्हें ऐसे ही कहा जाता है, देन द आंसर इज नो. मीन्स कोई सेंस है, हम पूरा डिटेल में समझते हैं और हम कौन से शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करेंगे. तो बोरोवर के लिए मैं यूज करता रहूंगा बोरोवर. ओरिजिनेटर के लिए ओरिजिनेटर. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए एआरसी एंड क्वालिफाइड बायर. सो फ्रेंड्स, दिस आर द 4 टर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स विच आई एम गोइंग टू यूज. सो ऑलवेज रिमेंबर द सेम. मैं जब भी लिखता हूं बी आर, तो जिस इंसान ने लोन लिए. ओ आर, ओरिजिनेटर, जिसने लोन दी है. असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड चौथा क्वालिफाइड बायर्स, यानी कि जो इस प्रोसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब फ्रेंड्स, इसी चीज को हम समझने जाते हैं. दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ bills discounting. Now what happens friend in this concept of bills discounting? मान लो कि मिस्टर एक्स है, यहां पे मिस्टर बी है. मिस्टर बी ने गुड्स सोल्ड किए 100 रुपए के
2020 में। एंड मिस्टर एक्स ने क्या किया, सामने एक बिल दिया विच इज मेच्योरिंग इन 2022. I can understand that this much big bill cannot be there, but just for the sake of understanding, we are keeping it a bill of 3 years. अब मिस्टर बी को पैसों की जरूरत थी 2021 में, तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी went to बैंक एंड मिस्टर बी ने वो जो बिल था वो बैंक को दिया और बैंक ने मिस्टर बी को 95 रुपीज दिए. दिस इज बिल्स डिस्काउंटिंग. एंड फिर जब 2022 आया तो बैंक ने मिस्टर एक्स को बिल दिया, रिप्रेजेंट किया, एंड मिस्टर एक्स ने बिल के 100 रुपए चुका दिए. सो सेल्स कब हुआ फ्रेंड्स, 2020 में. डिस्काउंटिंग कब हुआ, 2021 में. और उसको रिकवर कब किया गया, 2022 में. इस तरीके से 3 अलग अलग इवेंट्स को किया गया. इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं. और मैं इसको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 डॉट्स के माध्यम से बता रहा हूं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट. आप इसे नोट डाउन करते जाना अपनी नोटबुक के अंदर, वीडियो को पॉज कर करके, बिकॉज ये सब चीजें फ्रेंड्स अगर मैं आपको क्लासरूम में समझाता तो आप जानते हो मैं बड़ा सा बोर्ड वर्क करता हूं. बट राइट नाउ आई हैव अ कंस्ट्रेंट, बट यस एज फ्रॉम नौकार वी आर डीम्ड एंड कमिटेड टू सर्व यू. सो इसे लिखते जाना. सो नोटबुक में यू कैन ऑलवेज इंटरलिंक द सेम. सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटिंग. Now friends, we also need to understand one another concept, that is concept of fundraising for company. यानी मान लो कोई कंपनी है जिसको पैसों की जरूरत है. लेट अस से टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज वन कंपनी, let us say Reliance Jio. So Reliance Jio is a company, so it is registered with ROC. Reliance Jio is a telecom company, so it is registered with Telecom Regulatory Authority of India. So it is registered with both. अब इस कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी इन्वेस्टर्स के पास से पैसे लेगी. कैसे, इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसे देंगे एंड कंपनी इन्वेस्टर्स को क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी इश्यू करेगी. एंड फिर एक बार ये पैसे आ जाते हैं, फिर व्हाट द कंपनी विल डू, जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, कंपनी वो पैसे कम्युनिकेशन सेक्टर में लगाएगी एंड कम्युनिकेशन असेट्स को खरीदेगी. और उस कम्युनिकेशन असेट्स को खरीद के वो कस्टमर्स को कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी और उस रेवेन्यू में से इन्वेस्टर्स को रिटर्न देके सेटिस्फाई करेगी. दिस इज हाउ द थिंग्स गोज. वी वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस. अब सर आप डॉट डॉट क्या कर रहे हो, मैं आपको थोड़ी देर में फिर पूरा समझाता हूं. कि ये जो पूरे डॉट्स है वो किसके लिए यूज होने वाला है, एकदम लूसिड तरीके से हम पूरे अंडरस्टैंडिंग को लेके. मोर ओवर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. इन्वेस्टर्स 3 प्रकार के होते हैं. कौन से 3 प्रकार के, वन इज RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. अनदर इज NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. द थर्ड इज QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर.
ये 3 प्रकार के अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, हम समझते कि ये तीन प्रकार के इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो मान लो कि फ्रेंड्स जो इन्वेस्टर्स है वो अगर नेचुरल पर्सन हो, हमारी तरह जीता जागता इंसान हो, एंड application value greater than rupees 2 lakh, ना तो that person is retail individual investor RIA, एंड अगर वो 2 लाख से ज्यादा हो yes, तो पर्सन बिकम्स नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII, RII एंड NII। एंड फ्रेंड्स, अगर जो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है वो आर्टिफिशियल पर्सन हो तो फिर हम उन्हें कहते हैं QIB। व्हाट इज QIB फ्रेंड्स? क्वालिफाइड तो फ्रेंड्स हम उन्हें कहते हैं QIB qualified institutional buyers, QIB. What can be the examples of friends QIB? Banks, financial institutions, insurance company, foreign institutional investors, provident fund, pension fund, mutual fund, collective investment scheme, etc. All these are the examples of what? Then you can say QIBs. So friends, kindly note down this very important concept, right? That is of types of investors. Okay, investors are mainly of 3 types. Which 3 types? Then if the person is investing up to 2 lakh rupees, natural person, the person is known as RII. If the person is investing from for natural person is investing beyond 2 lakh, then the person is known as NII, non-institutional investors. And if the person is investing, person is an artificial person, then the person is known as QIB. So friends, these are the 3 different types of investors: RII, NII, and what? QIBs. This is something I wanted to discuss with you. So what we discussed, friends, the concept of bills discounting,
the concept of fundraising, and the concept of types of investors. This is the three things which we discussed with you right now. And now we are going to plunge into understanding the actual process, that how the things go. Now see friends, what first will happen? Then it will be we are having 4 different parties to deal with. And the important one is asset reconstruction company. So I'm making it as a round. So we have this 4 different entities to deal with. Now friends, the very first is borrower. I told you it is borrower. The second is originator. The third is asset reconstruction company. The fourth is qualified buyers, that is the investors. Those are the 4 different entities. Plus friends, asset reconstruction company is registered with ROC because it's a company, and it is also registered with RBI. It is also registered with RBI because friends, it is a financial sector company and the regulator is RBI. अब मैं आपको वो डॉट्स के रेफरेंस दे देता हूं जो मैं करता था ना. जिससे आप आगे वाले डायग्राम्स के अंदर इसे कोरिलेट कर पाओगे. So this is how the whole structure is made up of. Now what is the friends zero structure of this particular? इन डायग्राम में कुछ नहीं हुआ, तब क्या था? तो बोरोवर की अगर हम जीरो पोजीशन देखें, जीरो पोजीशन यानी कुछ नहीं हुआ, वो वाली पोजीशन अगर हम बोरोवर की देखें, जीरो पोजीशन, तो उसके पास फंड्स नहीं है, पर उसके पास क्या असेट्स है? हाँ, देन ही इज हैविंग एन असेट, उसके पास असेट्स है. फिर फ्रेंड्स दूसरे साइड अगर हम ओरिजिनेटर की पोजीशन देखें, तो ओरिजिनेटर की पोजीशन में जीरो पोजीशन में क्या है? तो उसके पास असेट्स
नहीं है, ही डज नॉट हैव असेट्स, राइट, बट उसके पास फंड्स पड़े. This is the position right now. Now what will happen, friends? Now अब क्या होगा? Then there's some issue. Now what will happen, friends? Bank gives loan of rupees 100 in 2020 to Mr. X, and Mr. X and Mr. X gave a promise to repay along with charge. To whom? To bank. What is, and when this happened? This happened in 2020. ये कब हुआ? 2020 में हुआ. तो फ्रेंड्स इसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में वी टेल इट एज what? Lending and borrowing. पर इसे टेक्निकल लैंग्वेज में अब हम क्या कहेंगे? देन वी विल से इट एज असेट and this is technically known as what, friends? Then this is known as asset construction. So friends, if I try to brief it out to you, as you can see on the screen, then what happened? The very first transaction which took place in 2020 was of what? Asset construction. जिसमें क्या हुआ? जो ये पैसे थे बैंक के पास वो चले गए किसके पास? बोरोवर के पास. एंड बोरोवर ने जो असेट था वो गिरवी रख दिया किसके पास? बैंक के पास. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच टुक प्लेस. This is known as asset construction. This is known as what, friends? Asset construction. And ये इसको मैं कंपेयर करूं तो यू फोकस ऑन दिस 1 dot and 2 dot ब्लू कलर में जो है, एंड इफ वी ट्राई अबव एंड गो एंड सी, देन दिस इज दैट पार्ट. ऊपर 1 dot 2 dot सेम थिंग.
Now what happens, friends? In this diagram, we are coming to the asset reconstruction company. What is the zero position of asset reconstruction company? Zero position. तो उसके पास फंड्स नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी रिसिप्ट्स है. नाउ व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स. तो आप आज के लेक्चर के लिए मान लीजिए कि जैसे कोई कंपनी होती है और डिबेंचर इश्यू करती है, शेयर इश्यू करती है, वैसे एक प्रकार के डिबेंचर्स है. तो इसे हम यहां पे क्या कहते हैं? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स. एंड तीसरा असेट्स. तो कंपनी के पास असेट्स नहीं है. दिस इज द जीरो पोजिशन ऑफ व्हाट? an asset reconstruction company. If we now try to go and see the zero position of qualified buyers, then उनके पास फंड्स है पर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है. So this is the lower part of the concept. यानी you can see the डायग्राम. अब क्या होगा फ्रेंड्स? नाउ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नीड्स फंड्स. यानी अब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फंड्स की जरूरत है. तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यू करेगी. सॉरी. एंड सामने क्वालिफाइड बायर्स क्या करेंगे? पैसे प्रोवाइड करेंगे. मान लो क्वालिफाइड बायर्स ने 90 रुपीज प्रोवाइड किए और सामने सिक्योरिटीज प्रोवाइड की. तो ये कब हुआ? 2021 में. तो हम नॉर्मली इसे क्या कहते हैं? We tell this as issue of securities. इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. पर इससे हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में कहने जाए तो इट इज सिक्योरिटीज प्लस क्रिएशन. Very important. Securitization. It is known as what? Securitization. That is the process by which asset reconstruction company issues security receipts and raises the funds for its own use. That is known as what? Securitization. And friends, this is the second event which is happening between ARC and qualified buyers. So if we try to see to this, तो इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे देंगे किसको? ARC को. एंड ARC सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यू करती है किसको? इन्वेस्टर्स को. अब बोलते हैं सर ये क्वालिफाइड बायर क्या है, सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या है? तो हम थोड़ी देर में डेफिनेशंस के अंदर देखते हैं. पर इस प्रकार से क्या हुआ फ्रेंड्स? देन यू कैन से दैट इस प्रकार से दे इश्यूड व्हाट? द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स. सो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो हमारे डायग्राम में ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ दैट इज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. एंड सिक्योरिटाइजेशन को अगर मैं कंपेयर करूं यानी 3 डॉट एंड 4 ब्लू डॉट को मैं कंपेयर करूं यहां, तो इट इज वेरी सिमिलर टू दिस रिलायंस जियो रेजिंग द फंड्स फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स. तो ये एंड इसको हम एकदम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. ये हमारा डायग्राम हुआ. अब फ्रेंड्स क्या हुआ? आज बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ दिस एक्ट हम इस पूरे एक्ट का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव समझते हैं. यानी कि जो बैंक है
जिसने 100 रुपए की लोन दी है, जो पैसे रिकवर कब होने वाले 2022 में, लोन कब दी थी 2020 में, तो बैंक क्या करना चाहती है 2021 में उस पैसों को रिकवर करना चाहती है, बिकॉज बैंक के पास एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी है जहां पे बैंक इन पैसों को लगाना चाहती है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट कैन बी डन इज, तो अब फ्रेंड्स हम फोकस करेंगे ओरिजिनेटर, दो डॉट एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन, यानी नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन ओरिजिनेटर एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। राइट, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, ओरिजिनेटर जो है वो उसके पास जो फाइनेंशियल एसेट है उसे किसको बेच रहा है, एआरसी को, एंड एआरसी सामने उसे 95 रुपीज प्रोवाइड करती है। आप बोलते हो सर इन्वेस्टर्स के पास से तो 90 रुपए लिए, तो 95 कैसे दिए फ्रेंड्स, 90 रुपए इज द बोरोड फंड इश्यूड बाय रेज्ड बाय इश्यूइंग सिक्योरिटीज। हालांकि एआरसी खुद कंपनी है, तो उसके ओनर्स फंड हो गए, उसमें से यूज किए। एंड ये कब हुआ 2021 में। इसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट। पर फ्रेंड्स अगर हम इसे सरफाइशी के लैंग्वेज में समझे तो इसे हम कहेंगे असेट रिकंस्ट्रक्शन। इसे फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे, असेट रिकंस्ट्रक्शन। एंड फ्रेंड्स थोड़ा अगर हम और ध्यान दें तो ये तीसरी इवेंट हुई, जिसके कारण क्या हुआ, बैंक ने अपने असेट दिए, एंड कंपनी ने क्या किया, पैसे दिए। सो अगर आप फ्रेंड्स बैंक के ऊपर ध्यान दो, ओरिजिनेटर के ऊपर ध्यान दो, तो उसकी पहले जैसी पोजीशन थी वैसी पोजीशन वापस से उसकी हो गई। एंड ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे हम क्या कहते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन। इसे फ्रेंड्स आप साथ साथ ड्रॉ करते रहना सो दैट यू बिकम क्लियर विद दिस। नाउ फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस व्हेन 2022 कम्स, एआरसी क्या करेगी, वो फाइनेंशियल एसेट जो है वो बोरोवर को पेश करेगी। Now I have some limitation with respect to this technological board. So 22 and borrower सामने क्या करेगा, जो भी पैसे है उसे इंटरेस्ट के साथ चुका देगा। वैसे रेगुलरली रिपेमेंट होता रहता होगा, पर मैं एक साथ बता देता हूं, मान लो 120 रुपए चुकाता है। सो व्हाट विल हैपन नाउ फ्रेंड्स, पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ क्या होगा, उसको पैसे मिलेंगे और उसे फाइनेंशियल एसेट दे देना होगा। एंड बोरोवर के साथ क्या होगा, उसने पैसे पे किए और उसका असेट उसे वापस मिल जाएगा। सो अगेन यू कैन सी बोरोवर की पोजीशन पहले जैसी थी वैसी हो गई।
एंड फ्रेंड्स ये सारे डायग्राम को अगर आप कंपेयर करते रहते हो, अगर आपको कोई भी जगह कंफ्यूजन रहे, तो ये जो ब्लू कलर के सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुप्लेट डॉट्स है, उसको आप आगे वाले डायग्राम के साथ कंपेयर करो तो यू विल कम टू नो. आप अगर 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट को कंपेयर करो तो ये बिल्स डिस्काउंटिंग हुआ. ये पूरा जो आप देख सकते हो, दिस इज बिल्स डिस्काउंटिंग. राइट. फिर अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये पूरा इज रेजिंग ऑफ फंड्स, जो हमने रिलायंस जियो के एग्जांपल से समझा था. सो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा कॉन्सेप्ट बनता है. एंड अंत में फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन, अभी मैं यहां ड्रॉ नहीं कर पा रहा, पर ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो पैसे किसको चुका देगी? क्वालिफाइड बायर्स को. So the money will be paid back to qualified buyers. So what will happen? Fifth thing, they will get money and secure receipts will be redeemed. And यहाँ पे क्या होगा? पैसे गए, secure receipts आ गई और assets गए. This is how the things will end. So this will be the zero position. Let me just write it down. This is how the whole concept will go. So ये मैंने पूरे एक डायग्राम के तौर पे समझाया. अब मैं आपको एक एक डेफिनेशन भी समझाता हूं, राइट, कि हाउ द थिंग्स हैपन. सो हम कह सकते हैं कि 5 चीजें हुई. एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या था? ये 2 चीज को समझना. asset reconstruction and what? Securitization. These 2 were the main things. अब फ्रेंड्स कितनी चीजें यहां पे हुई अगर हम ध्यान दें तो एक्टिविटीज इन्वॉल्व. कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई? तो सबसे पहले क्या हुआ? असेट कंस्ट्रक्शन. कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे? देन यू कैन से वन वाज ओरिजिनेटर एंड अनदर इज व्हाट? बोरोवर. फिर दूसरा क्या हुआ? सिक्योरिटाइजेशन. इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड क्वालिफाइड बायर. फिर तीसरा प्रोसेस कौन सा हुआ? असेट रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ओरिजिनेटर. चौथा क्या प्रोसेस हुआ? रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट, जिसमें कौन इन्वॉल्व था? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड बोरोवर. एंड पांचवा क्या हुआ? रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विथ इनकम, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड क्वालिफाइड बायर. सो दिस वेर द 5 इवेंट्स विच सिक्वेंशियली हैपेंड. एंड नॉर्मली क्या देखने मिलता है? पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन होता है, फिर सिक्योरिटाइजेशन होता है, फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन, रियलाइजेशन एंड रिडेम्पशन. पर कई बार ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन तो हो ही जाएगा, पर उसके बाद पहले एआरसी असेट खरीद लेती है एंड फिर एआरसी सिक्योरिटाइजेशन करके पैसे रेस करके रीपे करती है, फिर रियलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? रिडेम्पशन. सो ये 2 चीजें, सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज द सीरीज ऑफ इवेंट्स गोज लाइक दिस. So these are the 5 things which happens in the market, you can say in the scenario. And this is friends how the finance always keeps on flowing in the whole economy. So friends, these are the 5 things which happened, and if I try to summarize this again
right? I think so, no needed with the help of this diagram. So now we are moving towards what? The third, that is what? That is, you can say, the definitions part. The very first definition we will discuss is with respect to asset reconstruction. What I mean to say by asset reconstruction, friends, तो आपको किसके ऊपर फोकस तब ले जाना होगा आपका यहाँ. You need to take your focus to this part. Asset reconstruction. Asset reconstruction means, friends, we are understanding this definition of asset reconstruction. Asset reconstruction means acquisition by an asset reconstruction company. This is your first point. क्या? Of any right of any bank or financial institution in any financial assistance, यानी कोई फाइनेंशियल असेट, दैट इज द लोन. यानी एआरसी उस लोन को क्या करती है? एक्वायर करती है. क्यों एक्वायर करती है? उसे रिपे करने के लिए? ना 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 ना, उसे रियलाइज करने के लिए. फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. सो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब लोन खरीदती है उसे रियलाइज करने के लिए, देन इट इज नोन एज asset reconstruction. This is the definition of asset reconstruction. And दूसरी definition क्या? Asset reconstruction company means a company registered with Reserve Bank for the purpose of carrying on the business. And business of what? Asset reconstruction or securitization or both. यानी एक ऐसी कंपनी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है जिसका काम है बिजनेस करना, एंड वो बिजनेस कौन सा है? असेट रिकंस्ट्रक्शन या सिक्योरिटाइजेशन या दोनों करना. तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. फ्रेंड्स, अगर मैं मैंने जैसे अंडरलाइन किया वो आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे आप घर पे बाद में क्या कर सकते हो, आपकी डेफिनेशन को कॉपी भी कर सकते हो. अगर मैं साथ साथ समराइज करूं, तो दिस इज ए कैटेगरी. बोरोवर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सी कैटेगरी. सी कैटेगरी जो काम किया वो समझाता हूं. सी कैटेगरी. हाँ, डिफॉल्ट बी कैटेगरी. चलो इसे समझते हैं. डिफॉल्ट क्या? नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट और एनी अदर अमाउंट पेबल. सो मेनली इट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉन पेमेंट बाय द बोरोवर टू सिक्योर्ड क्रेडिटर. बोरोवर यानी एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी पहले ओरिजिनेटर एंड बाद में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. कॉन्सिक्वेंट अपॉन विच, ड्यू टू इट विच डिक्शनरी में ऐड करना है. कॉन्सिक्वेंट मतलब ड्यू टू विच द अकाउंट ऑफ सच बोरोवर इज क्लासिफाइड एज एनपीए in the books of accounts of secured creditor, or non-payment of any debt or any other amount payable by borrower with respect to debt securities after notice of 90 days. यानी नोटिस भेजी 90 दिन तक वो पेमेंट बाकी रहता है. served upon such borrower by debenture trustee or any other authority in whose favor security interest is created. मीन secured creditor जो है वो, यानी मान लो कोई कंपनी है जिसको अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को रिपे करना है. डिबेंचर होल्डर्स को रिपे नहीं किया तो डिबेंचर ट्रस्टी ने डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कंपनी को नोटिस भेजी, एंड नोटिस भेजने के 90 दिन के बाद भी अगर वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहता है तो दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? एज डिफॉल्ट. दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सी कैटेगरी. फाइनेंशियल असेट्स सी कैटेगरी, ये आपको खुद एक बार करीब पढ़ लेना है. फाइनेंशियल असेट जस्ट लाइक योर एफएम, नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट सी कैटेगरी. नॉन परफॉर्मिंग असेट बी कैटेगरी. दिस इज वेरी सिंपल.
obligor, yani we know this person is also known as obligator, or this person is also known as borrower. Originator yani you can say that this is bank or financial institution. Qualified buyer, this we need to understand. क्वालिफाइड बायर में कौन कौन आता है? तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्वालिफाइड बायर का मतलब क्या? ओनली क्वालिफाइड बायर्स कैन परचेज सिक्योरिटी एसेट्स। चलो इसे समझते हैं, क्वालिफाइड बायर्स में कौन कौन आता है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। मैं एक काम करता हूं, जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है ना, उसे मैं अंडरलाइन करता हूं। See, first is financial institution. It's a qualified buyer. Institutional buyer. Insurance company, qualified institutional buyer. Bank. State Finance Corporation. State Industrial Development Corporation. Pachi, now something important is trustees or ARC, which has been granted a certificate of registration under subsection 4 of section 3. ये जो पूरा है, इसे हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड एआरसी। देन म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑल दिस आर क्यूआईबीज, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एनी अदर पर्सन इन्वॉल्व। सो अगर मैं इसको समराइज करूं, क्वालिफाइड बायर को, जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ व्हाट? क्वालिफाइड बायर। देन क्वालिफाइड बायर में क्या क्या आएगा? पहले तो 3 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं, आर, आई, NII and QIB. Now RII is not included in qualified buyer. So we have NII, we have QIB. Apart from QIB, and QIB के अंदर कौन कौन थे? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तीसरा क्या था? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चौथा क्या था? यानी आने वाले भविष्य में गवर्नमेंट अगर किसी को स्पेसिफाई करना चाहता है तो वो क्वालिफाइड बायर में कर सकते हैं ना। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? सिग्निफिकेंस, just a minute friends. Only qualified buyer can subscribe to security receipts. यानी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड बायर्स ही क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी रिसिप्ट्स तो खरीद सकते हैं। सो आप कह सकते हो फ्रेंड्स, RII नहीं है, NII, QIB, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अदर स्पेसिफाइड पर्सन, ये सब लोग किस में आ जाते हैं? एंड या आई फॉरगॉट वन मोर,
So one ARC can also subscribe to the security receipts issued by another ARC. तो ये 5 प्रकार के लोग हैं, और अपने डायग्राम डेफिनेशन देखा हो तो मैंने इसे अंडरलाइन किया था, स्ट्रेट अंडरलाइन, इससे मैंने क्या किया था, कर्व्ड अंडरलाइन. तो ये 5 प्रकार के लोग हैं जो यू कैन से दैट क्वालिफाइड बायर्स के डेफिनेशन में कवर हो जाता है. दिस बीइंग रिस्की एरिया, retail individual investors don't invest in this. Then friends comes the definition of scheme, B कैटेगरी. जैसे म्यूचुअल फंड पता है अलग अलग स्कीम लॉन्च करता है, एक म्यूचुअल फंड की स्कीम 1, स्कीम 2, वैसे ARC भी स्कीम लॉन्च करता है. मीन्स अ स्कीम इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी रिसिप्ट्स proposed to be issued by an ARC under that scheme. Then securitization, an important definition. Securitization क्या होता है कि company raises the funds from investors, qualified buyers, by issuing security receipts. And वो फंड का उपयोग वो क्यों करती है? Then you can say asset reconstruction करने के लिए. तो securitization means acquisition of financial assets by an ARC from any originator, यानी कि बैंक, whether by raising funds by such ARC from qualified buyers by issue of security receipts representing undivided interest in such financial assets or otherwise. So that is the basic definition of what? Securitization. Plus friends, ये भी खाली एक बार पढ़ना, you will come to know, let's say, what securitization actual is meant by. अगर कोई डाउट हो तो you can ask me. Various other definitions not that much important: security agreement, secured assets, secured creditor, not needed, secured debt, some technical issue. Security interest, not that much important. And last is security receipts. What is basically security receipt? तो जस्ट लाइक डिबेंचर्स, पर इट इन्वॉल्व्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट. यानी म्यूचुअल फंड की अगर आप यूनिट खरीदते हो तो आपने जिस स्कीम के यूनिट खरीदे हो उस स्कीम को अगर फायदा होता है तो ही वो काम का होता है, अदरवाइज वो काम का होता मीन्स तो ही आपको बेनिफिट मिलता है. वैसे आपने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जिस स्कीम की सिक्योरिटी रिसिप्ट खरीदी होगी उस स्कीम को अगर फायदा होता है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा. सो सिक्योरिटी रिसिप्ट मीन्स अ रिसिप्ट और अदर सिक्योरिटी मीन्स टाइप ऑफ शेयर डिबेंचर लाइक दैट issued by ARC to any qualified buyer. यानी SR is issued by ARC to qualified buyer pursuant to a scheme, due to a scheme. And वो अगर जिसके पास हो तो उसके पास सबूत है, evidencing the purchase or acquisition by the holder thereof of the undivided right in the financial asset involved in the securitization. यानी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स दी गई है ARC के द्वारा, मान लो मुझे दी गई है, तो इट्स एन एविडेंस दैट आई होल्ड इंटरेस्ट इन द असेट विच इज बीइंग परचेज्ड by the ARC. So friends, ये definitions complete हुए और इसके ऊपर से कौन कौन से questions आज तक पूछे गए. तो they have asked the definitions like the definition of asset reconstruction, the definition of financial asset, then they asked the definition of securitization, they asked the definition of non-performing asset and asset reconstruction. तो ये सारे definitions हमने डिटेल में देखे, प्लस आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा था जिसके अंदर हमने ये सब डेफिनेशंस को क्लियर अप किया. सो दिस इज फ्रेंड्स द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज वी कैन से दैट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपके साथ यहां पे बात की है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसको हमने यहां पे डिटेल में देखा. अब फ्रेंड्स इतना देखने के बाद इफ यू वांट यू कैन रीड द इनिशियल 2-3 पेजेस ऑफ मॉड्यूल ऑल्सो. उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा बिकॉज मॉड्यूल में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पूरा बुक पूरे चैप्टर की समरी देते हैं, पर नेक्स्ट लेक्चर में आप आते हो उसके पहले अगर आपने इतना एक बार देख लिया होगा कॉन्सेप्चुअल समरी के साथ, तो इट विल ऑलवेज बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू. एंड फ्रेंड्स, ये डायग्राम को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में देखें एक बार वापस से टू एंड अप विद, तो कैसे था? 4 लोग थे, बोरोवर, ऑब्लाइगर, क्वालिफाइड बायर, असेट रिकंस्ट्रक्शन. 2 लोगों के पास स्टार्टिंग से पैसे, तो मैं उनको डबल राउंड कर देता हूं.
कौन से दो लोगों के पास? तो एक था ओरिजिनेटर, दूसरा था क्वालिफाइड बायर. एंड हाँ, वो मैं राउंड्स कर देता हूँ, सो यू कैन कोरिलेट. नाउ अब क्या हुआ? व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच हैपेंड? ओरिजिनेटर ने लोन दी, तो पैसे गए इकोनॉमी के बाहर. दिस इज सिस्टम, दिस इज फाइनेंशियल सिस्टम, दिस इज इकोनॉमी. तो पैसे बाहर गए, पर कोई बात नहीं. सामने दूसरा क्या हुआ? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? देयर इज सम टेक्निकल इश्यू. So friends, the first transaction which took place was asset construction. Then the second transaction which took place, जिसमें what happened that जो पैसे थे वो पैसे ARC में क्या हो गए? इन्वेस्ट हो गए. तो दैट इज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. फिर क्या हुआ? असेट रिकंस्ट्रक्शन ने असेट खरीदा और वो पैसे किसको दिए? बैंक को दिए. फर्स्ट, सेकेंड. तो थर्ड ट्रांजैक्शन हैपेंड ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन. फिर चौथा क्या हुआ? तो इससे कारण क्या हुआ? पैसे, अगेन सम टेक्निकल इश्यू. Then friends, the fourth transaction, borrower repaid the money. So this was realization of financial asset. And fifth transaction, ARC redeemed the security receipts. So these are the 5 steps. यानी एकदम शॉर्ट में ये जो आगे था वही यहां पे रिपीट किया. बट दिस इज एंड अगेन यू सी, तो जिसके पास पहले पैसे थे उसके पास बाद में है, इसलिए देखो मैंने डबल राउंड से किया था. और जिसके पास पहले पैसे नहीं थे, जीरो, उसके पास अभी भी पैसे नहीं. So that's how finance keeps on flowing in an economy. So hereby we end up with our first session, friends, of basic concepts. I request you to read this 1 or 2 times again, and tomorrow we start up with the actual legal act. तो आप बोलते हो सर ये सब क्या काम का था? This is for case study and this is for the actual understanding will become simplified, right? And then we start with our basic understanding. I'll request you कि आप तब तक इतने डायग्राम्स आपकी नोटबुक में ड्रॉ कर ले एंड कुछ डेफिनेशंस कॉपी कर ले. One is the definition of asset reconstruction. Second is definition of asset reconstruction company. Third is definition of securitization. Fourth is definition of borrower. Fifth is definition of default. Sixth is definition of qualified buyer. And seventh is definition of security. इतने डेफिनेशन कॉपी नहीं होते, तो आप ये डायग्राम सारे ड्रॉ करो और इतने डेफिनेशन कॉपी करो. एंड दैट टू ट्राई टू कॉपी again some technical issue. Try to copy point wise, यानी पॉइंट में आप इसे कॉपी करना है, एज इट इज पैराग्राफ फॉर्म में नहीं करना. तो इतने पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा. दैट इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट, दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे ऑपरेट करती है. If you like this video, share it with your friends.
Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.